करते हैं। तो लेट्स सी कि इसमें हमने ये आपका जो पहला चैप्टर है, मैं अभी आपको चैप्टर भी दिखाऊंगा। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में है, और उसके बाद जो है इसके अंदर मैं आपकी अभी एक्सरसाइज भी निकालूंगा, एक्सरसाइज भी आपसे शेयर करूंगा, और बुक्स का भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा। सुबह मैंने उसकी मैट्रिक की बुक्स का लिंक भेजा था, उस वहां से आप अपनी बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है, जब तक कि आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती तो, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये हमारा जो लेसन है इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैन यू रीड दिस स्क्रीन? What is a relation? हाँ, A relation is a set of ordered pairs. यस, नेक्स्ट। When you group two or more points in a set, it is referred to as a relation. Yes, it is referred When to you the relation. Good. Yes. when you want to show that a set of points is a relation, you list the point in braces. Yes. For example, if you want to show that points -3, 1, 0, 2, 3, 3 and 6, 4 are a relation, it would be written like this. Yes. तो ये हम ब्रैकेट्स में लिख दिया करेंगे, ये रिलेशन हमारी होगी। अब इससे डोमेन और रेंज की बात करते हैं। लेट्स सी, प्लीज रीड दिस वन। Each ordered pair has two parts, an x value and a y value. The Yes. x value of a given relation are called domain. The y values of a relation are called range. यस, तो जो When पहला you- यस जो हमें ऑर्डर पेयर लिखते हैं, तो फर्स्ट इज एक्स और वाई, तो फर्स्ट नंबर इज that is from the domain, the second was it after the comma, that is for the y, and that is called the range. Next, when you list the domain and range of relation, the place each the domain and the range in a separate set of braces. yes, if ये तो ordered pair हो गया when we are writing in the ordered pair, but if you are asked to write down the domain or the range, so all the first elements you must enclose in a bracket, that is called the domain, and all those the second points of the ordered pair, those are enclosed in a separate bracket, and this is called the range. Okay, are you getting me? Okay, sir. Are you getting Yes, me? sir. Very good, Shabash. Yes. Well, now let's see for example. So this example will explain each and everything. Look at this and just read this. For example, yes, please read out. For example, list the domain and range of the relation. Yes, now relation is given. अब domain, what is the domain? All those first elements. पहले पेयर में से -3, and from the second 0 is taken, from the third pair 3 is taken, and from the fourth and the last one 6 is taken. So -3, 0, 3 and 6. This is called the domain. So domain is the set of the elements of the ordered pair, the first element of the ordered pair. So here you can see this is the ordered pair. So first element is coming over here for the domain, and from the next ordered pair the second element is coming over here, and from the third ordered pair the 3 is coming over here, and last ordered pair is 6, 4. So the first element is coming as a domain. So you must keep this thing in mind that all the first elements are making domain. Now range, read this one, how you are getting the range, please speak Range. out. Range 1, 2, 3, 4. How? The second element of any relation will be considered as range. Yes, so now you can see this is the first ordered pair. So the second element of each and every ordered pair, that from here we are getting 1. From the second ordered pair, the second element is 2, so 2 is coming over here, and from the third ordered pair the 3 is over here, and from the last ordered pair the second element is 4, so 4 is coming over here. So it's a very much clear that all those first elements are making the domain, and the second elements of the ordered pair
of all the ordered pairs are making the range. So 1, 2, 3, 4 is the range, and this is the domain. Now let's see, list the domain and the range of the relation. This is the relation, so you will have to note down the domain and the range. So speak out, please, or you will List the domain and the range of the relation. Domain Yes. -3, 0, 3, 6, 7, range 3, 2, 4, 7. Yes. Note it. One thing is that these are the set. Domain is a set, range is a set. So 3 is repeating. So in the set, we cannot repeat the element. So this 3 is coming one time. If you are writing this 3 also, so it's a wrong, because in the set there must not be any repetition. Ab ye, what is the notice? Please read this notice. Notice, even though the number 3 is listed twice in the relation, you only note the number once when you list the domain or range. So this was the point which I was explaining to you, that there is no repetition of the elements in the set. So that's why ये नहीं कि आपने blindly हर element को include कर लेना है. अगर वो already enlisted हो चुका है, यही सिलसिला domain के साथ भी है. If domain में some element is repeating, so you will have to take only once. Okay, are you getting me? मेरी बात समझ आई? What I am saying, कि if the number is repeating, good, very good, Shabash. So let's see, what is a function? Please read out. What is a function? A function is a relation that assigns each y value only one x value. What does that mean? It means in order for the relation to be considered a function, there cannot be any repeated values in the domain. There are two ways to see if a relation is a function: vertical line test, mapping. So a function is a relation. Relation means the ordered pair that assigns each y value only one x value. ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट सेट के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनका यूनिक इमेज होना चाहिए. ठीक है. व्हाट डज दैट मीन? इट मींस in order for the relation to be considered a function, there cannot be any repeated value in the domain. So there must not be double value. यानी कोई भी ordered pairs हैं तो उसके अंदर कोई ऐसा ordered pair नहीं होना चाहिए जिसमें पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा हो, कि वो पहले ऑर्डर्ड पेयर में भी आ गया है और दूसरे में भी, तो ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए यूनिक एलिमेंट होना चाहिए. सेकंड एलिमेंट कैन बी रिपीटेड, बट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर मस्ट नॉट बी रिपीटेड. समझ आ गई? तो ये आसान लफ्जों में है कि आपने ऑर्डर्ड पेयर को देखना है बड़े गौर से, और उनमें से सारे ऑर्डर्ड पेयर को देखना है. कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी आ चुका हो या नेक्स्ट आ रहा हो. समझ आ गई इस बात की? तो कितना आसान है. अच्छा, अब इसका दो तरीके हैं इसको चेक करने के मैथमेटिकली. तो लेट्स सी, ये है यूजिंग द वर्टिकल लाइन टेस्ट. पहले इसको पढ़ लें, फिर आई विल एक्सप्लेन दैट. प्लीज रीड आउट व्हाटएवर यू आर लुकिंग. स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है. Using the vertical line test. Use the vertical line test to check if the relation is a function. Only if the relation is already graph. Hold a straightened pen, ruler, etc. vertical to your graph. Drag the straighted from left to right on the graph. Yes. If the straighted intersects the graph once in each spot, then it is a function. If the straightened intersects the graph more than once in any spot, then it's not a function. A function. Not a function. Diagram. Yes, it's a diagram. Now the graph आपने उसको draw कर दिया. अगर it is just coming and intersecting at 2 points, तो वो नहीं होगा. अब इसको मैं further explain करता हूँ. Let's see how. Look at this example of the vertical line. Okay. Look at this. So this is your scale, this is your graph,
and if you are just bringing near to this, so this will become over here and there. Yeah, look at this. So this will be over here, and this one will come over here. So this is just not a function because this is coming over here and this is touching over here. ये function है. So only one point is touching to this, and here it is not a function. ये function है because it is touching only one point. This ये जो line है, ये आप स्केल को इसके करीब लाए ना, तो ये 2 पॉइंट पे टच करेगा इसको. ये कहाँ पे टच करेगा? ये देखिए एरो मीन कि यू आर ब्रिंगिंग दिस स्केल नियर टू दिस लाइन. तो जैसे ये पहले यहाँ पे टच कर गया, यहाँ से निकल आया टचिंग इसका, और ये ऊपर यहाँ से टच कर गया और यहाँ पे टच करेगा ना ये स्केल. हेलो आते, और इसको देखिए. हेलो सर, हेलो. हाँ, ये देखें, इसको देखिए, ये फंक्शन है. क्यों फंक्शन है? देखिए आप इसको जितना इसके पास लेते जाएं, ये एक ही जगह पे टच करेगी ये लाइन. देखिए यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, एक ही पॉइंट पे टच करेगा, कभी भी दूसरे पॉइंट पर टच नहीं करेगा. इसी तरह से ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे भी टच कर रहे हैं, जब और इसके करीब लाएंगे यहाँ पे भी टच हो जाएगा, और करीब लाएंगे तो इसको भी टच करेगा. पहले इन 2 पॉइंट्स पे टच करेगा, फिर तीसरा ये पॉइंट भी. अब ये फंक्शन है, ये देखिए इसको आप ऐसे ला रहे हैं तो ये यहाँ पे टच हो रहा है, इसको छोड़ेगा यहाँ पे टच हो जाएगा, फिर इसको छोड़ेगा इसको टच कर जाएगा, ऊपर टच नहीं होगा. लेकिन जैसे ही आप इधर लाएंगे तो ये पहले यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे, तो एट ए टाइम एक ही पॉइंट पे टच करेगा. तो इसको हम ग्राफ अगर ड्रा हो तो हम स्केल से वी कैन चेक. अगर 1 पॉइंट पे टच हो रहा है स्केल को तो दैट इज अ फंक्शन. अगर मोर देन 1 पॉइंट हो रहा है तो इट इज नॉट अ फंक्शन. अब दूसरा जो मैपिंग है, इसको पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे. ये ज्यादा इजी टेस्ट है. If the relation is not graph, it Graph. is easier to Yes. use what is called a mapping. When you are creating a mapping of a relation, you draw 2 ovals. वो In ओवल one टू oval, दायरे बनाते हैं. Yes sir, मुझे याद आ गया 10th वाली हाँ. चीज़ है. हाँ, पढ़िए, पहले पढ़ लें, फिर आगे इसकी डायग्राम आएगी. In one oval, list all domain values. In the other oval, list all the range values. Yes. Draw a line connecting the pair of domain and range. If the domain value map to 2 different range values, the relation is not a function. हाँ, देखा, अब ये बात है कि आपने 2 सर्कल बनाए, दायरे बनाए, ओवल बनाए, और उसके बाद उनकी मैपिंग की कि एक एरो उस सीधा अगले एरो पे जा रहा है. तो इसकी डायग्राम देखिए कैसे. ये इसको पढ़िए पहले, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं. लेट्स सी हाउ कैन यू रीड दिस वन. Create a mapping of the following relation and state whether or not it is a function. यस. डोमेन लैदा कर लेनी है, रेंज लैदा कर लेनी है, दोनों को एक ओवल में करके फिर हमने लाइंस ड्रॉ करके देखना है कि पूरा परफेक्टली कॉरेस्पॉन्ड करता है कि नहीं. अब आप देखिए और बताइए कि ये फंक्शन है या नहीं. यस सर, ये फंक्शन है. वेरी गुड. देखिए कैसे ये आपके पास रिलेशंस थी ना, ऑर्डर्ड पेयर थे. तो पहला हर एक का पहला एलिमेंट यहाँ इनलिस्ट होगा. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट इनलिस्टेड ओवर हियर. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट इनलिस्टेड इन द फर्स्ट ओवल. This is the first one, so over here. This is from the last one, so first element is listed over here. अब second आ गया, second इस oval में आ जाएंगे 1, 2 from here, 3 from here and 4 from the last one. 1, 2, 3, 4. अब steps क्या हैं? Draw ovals. तो इन दोनों ये नंबर हम ड्रॉ लिख के फिर हमने ये ओवल ड्रॉ कर लिए, सर्कल ड्रॉ कर लिए. उसके बाद सेकंड में हमने क्या किया? लिस्ट डाउन, लिस्ट डोमेन, ये डोमेन की लिस्ट हमने लिख ली. फिर लिस्ट रेंज के एलिमेंट्स लिख लिए. फिर हमने क्या किया? ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट. सो दिस 3 इज कनेक्टेड टू 1. यहाँ से देखना है कि 3 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है. इस ऑर्डर्ड पेयर को भी अपने जहन में रखना है. 3 इज कनेक्टेड टू 1, 0 इज कनेक्टेड टू 2, 3 is connected to 3 and 6 is connected to 4. So this 3 minus 3 is 1, 0 to 2, 3 to 3, 6 to 4. So these are connecting. अब अगले पेज पे देखिए. अब create a mapping. तो अब पिछले के बारे में डिसाइड करना था. तो let's see कि what is the decision कि क्या ये फंक्शन था या नहीं. क्योंकि हमने इतना वो देख लिया है तो what will have to take the decision. आप बताइए कि ये फंक्शन है या नहीं.
यस सर है। लिखा हुआ आ गया ना नीचे, क्या लिखा हुआ आ गया बताइए जरा, पढ़ लें। The relation is a function because each x value maps to the only one y value. हाँ, यानी x की हर वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू को मैप कर रही है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था फॉर दी इजी अंडरस्टैंडिंग कि these are the women and these are the men. So women are connected to only one man at, मतलब एक बंदे के साथ शादी हो सकती है। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल में हम देखते हैं। दूसरे में क्या है, क्रिएट अ मैपिंग। पढ़ो ना जरा इसको। Create a mapping of the following relation and state whether or not it is a function. Yes. Sir, it's not a function. अब देखिए, आपने पहले ही बता दिया, हालांकि आंसर पीछे, अब मैं छुपा दिया आंसर भी। तो अब पहले तो आपने वो स्टेप्स करने हैं ना, पहले आपने इनकी डोमेन लिखनी है। Yes sir. डोमेन Domain के range अलग करके फिर इसको हमें लाइन लगा के ड्रॉ करना है कि देखना है कि कॉरेस्पॉन्ड करता है कि नहीं, यानी एक वैल्यू के आगे एक वैल्यू ही आए, और अगर नहीं आ रही होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो अब आपने तो ये आपका चॉइस था, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। यस सर। तो चलो, जो मैंने आपको बिल्कुल देसी तरीका बताया है कि ये पहले वाली औरतें हैं, दूसरे वाले मर्द हैं, तो क्या क्यों नहीं है कि ये देखें ना, एक मर्द ने 2 शादियां की हुई हैं, ठीक है कि नहीं है? ये फंक्शन है या नहीं, आप ठीक है ना। तो इसमें देखिए, कोई औरत रहेगी जो जिसकी शादी ना हुई हो? नहीं सर। कोई ऐसी औरत है जिसकी एट ए टाइम एक ही मर्द के साथ शादी हो गई हो, 2 मर्दों के साथ? नहीं सर। अच्छा, कोई मर्द है जिसने 2 शादियां कर ली हो? यस सर है। तो ये तो इजाजत है ना, 4 शादियों की है। यस सर। तो अब ये फंक्शन है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, क्यों नहीं है? रीजन, व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? जो उसने पहले कहा हुआ। क्या कहा है उसने? नहीं सर, बल्कि बनता है फंक्शन, ठीक है ना। देखिए क्यों बनता है, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है एंड पे, ये फंक्शन है। अब देखो, इसमें नोटिस करें आप कि जब कभी भी आप इसको फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे तो आप देखें, नोटिस दैट इवन दो देयर आर 2's in the range, you only list the 2 ones, ठीक है। So this relation is a function because each x value maps to only one value. Each x, it is still a function if 2x values go to the same y value, ठीक है। अब इसकी देखें रेंज क्या है, 2, क्योंकि यहाँ पे हम रिपीट नहीं ना कर सकते। It is still a function if 2x values go to the same y value। समझ आ गई है? आप देखो, जब हम हाँ, ये देखें, ये 2 अब 2 के साथ चला गया, लेकिन हम सेट में तो एक दफा लिखेंगे, इसकी रेंज लिखेंगे 2 3 8, 2 3 8, 8 2 रिपीट नहीं किया। और फिर ये हर एक जो है मैपिंग कर रहा है। -1 की मैपिंग है 2, 1 की मैपिंग है 2, यानी इसकी ये जो इमेज है ना, दैट इज कमिंग फ्रॉम यूनिक। एक 2 -2 के साथ अटैच है और यही 2 1 के साथ भी अटैच है, तो डिफरेंट वैल्यूज यूनिक, तो इट्स अ फंक्शन। समझ आ गया? तो ये जो मैंने आपको एक मिसाल दी है ना कि विमेन एंड मेन वाली, तो ये बड़ी आइडियल एग्जांपल है। तो इट्स अ पॉसिबल, अगर यहाँ से 2 जा रहे होते ना, यहाँ से दो एरो जा रहे होते यूं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक औरत हो और इसके साथ भी शादी हो, इसके 2 एट ए टाइम नहीं हो सकते। समझ आ गई? तो फंक्शन ही होगा। अब इसके बारे में आप बताइए, ठीक है। ये मैंने इसका आंसर छुपा दिया थोड़ी देर के लिए, तो लास्ट मैपिंग देखिए जरा। सर ये अच्छा, क्रिएट अ मैपिंग ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एंड स्टेट वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। सबसे पहले हम डोमेन अलग करेंगे, फिर रेंज अलग करके लिख लेंगे ओवल्स में। तो सर ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं?
सर क्योंकि इसमें एक औरत ने 2 मर्दों से शादी की। हाँ और देखें ये लिखा हुआ है ना, मेक श्योर टू लिस्ट दी दैट -4 ओनली वंस। पहले हम सेट लिखेंगे ना तो रिपीट तो नहीं ना करेंगे। ये देखो -4 2 दफा आया लेकिन सेट में रिपीट नहीं करते, ये हमने लिख दिया। अब इनके एरोज देखो, ये -4 जो है -1 के साथ रेलेवेंट है, ये हो गई। ये -4 0 के साथ भी है तो 0 के साथ एरो चला गया, और ये 5 जो है 1 के साथ है। एवरीथिंग इज ओके, बट दिस इज व्हाट वी कैन से मेक श्योर टू लिस्ट द -4 ओनली वंस। अब दिस इज नॉट अ रिलेशन, ठीक है, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज -4 मैप्स दी -1, मैप्स दी -1, ठीक है। वो क्या कर रहा है, -1 को भी मैप कर रहा है और 0 को भी मैप कर रहा है, 2 के साथ इसकी रिलेशन बन गई है। तो इट्स देखिए अब नीचे जवाब आया, इट इज नॉट अ फंक्शन इफ 1x वैल्यूज गो टू 2 डिफरेंट y वैल्यूज। यानी जहां से ओरिजिनेट होते हैं ना एरो, वो 2 एरो एक जगह से ओरिजिनेट नहीं होने चाहिए। तो ये क्या है, ये रिलेशन नहीं है। समझ आ रही है इस बात की, आपको समझ आई? ठीक है, तो अभी आज हम थोड़ा लेट हो गए। अच्छा, अब हमने डिसाइड करना है कि असफर कह रहा था कि वहाँ पे आपको 1 बजे तक क्लास अटेंड करनी है, सही है? 1 बजे तक सर 1 बजे असल में जोहर की नमाज का टाइम हो जाता है ना, तो ठीक है, यानी 1 बजे ऑफ होनी चाहिए। हाँ यस सर, 1 बजे तक खत्म हो जाए। तो अगर हम 8 बजे फिर पाकिस्तान के टाइम पे 8 बजे और आपके 11 बजे, तो 11 बजे पॉसिबल है। आप दोनों बैठे हो, जो भी रेडी होगा उसकी हम क्लास लेंगे, ठीक है? यस सर, पॉसिबल है। क्योंकि अभी मैं 4 बज गए हैं तो मुझे एक और क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। तो इसलिए आप ये मैं आज स्लाइड वगैरह आपको भेज दूंगा, ठीक है? और आपने वही आईडी लिखनी है, ठीक है? सिंपल, जैसे आज इन हुए ना, मैं ऑनलाइन होऊंगा सुबह 8 बजे, तो अगर असमर तैयार हो या आप में से जो भी होगा, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा जिससे आप बुक भी डाउनलोड कर लेंगे, सॉफ्ट कॉपी, और स्लाइड्स भी भेजता रहूंगा। एक दफ़ा हम इन लाइन हो जाए तो सुबह 8 बजे इंशाल्लाह ताला, आपके बज रहे होंगे 11, हमारे बज रहे होंगे 8, ठीक है? तो वी विल बी ऑनलाइन। तो मेरी दूसरी क्लास होने वाली है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।